यस। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री, the social background, the religious, ethical, and spiritual background, then the political background, the style, substance, and literary aspects of romantic poetry हम लोगों ने बाकायदे डिस्कस किया. In this class, we proceed with the individual romantic poets जिन्होंने की एक बहुत important impression डाली है English literature पे through their romantic poetry, and the first name that comes to mind is William Wordsworth. तो हम लोग अब एक प्रकार से पूरा का पूरा literary analysis विलियम वॉर्ड्सवर्थ का करेंगे. And as you know, Wordsworth, he is nicknamed as the high priest of nature. Nature. Nature, according to Wordsworth, was God, was the force that permeated the universe, was the force which actually guided and oriented, directed the entire cosmic forces. So Wordsworth, you know, he had a pantheistic belief in nature. Friends, Wordsworth was born on 9th April 1770 at Cockermouth, in the district of Cumberland, which is popularly known as the Lake District. Lake District. The district is famous for its natural wealth, resplendent hills, lush green valleys, rivulets, rivers and streams, waterfalls and cataracts. बहुत सुंदर जगह है. यहाँ पर इसका जन्म हुआ और जीवन पर्यंत प्रकृति का ये अविरल जो उसको अनुभूति प्राप्त हुआ, it prevailed with him throughout life. His father, John Wordsworth, was the legal representative of James Lowther, the first Earl of Lansdale. Native of James Lowther.
ठीक है. So he was the legal representative of James Lowther, the first Earl of Lansdale. और वॉर्ड्सवर्थ चूंकि अब उसके पिताजी एक प्रबुद्ध इंसान थे, संपन्न थे. वॉर्ड्सवर्थ की स्कूलिंग किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई. ठीक है. और उन्होंने अच्छी शिक्षा और सार्थक शिक्षा प्राप्त की. He was educated at the King's College, Cambridge University. जब वॉर्ड्सवर्थ 35 साल के थे इन 1805, उसी साल उनके पिताजी जेम्स जॉन वॉर्ड्सवर्थ का देहांत एक शिपरेक में हो गया. इंग्लैंड के तट से बामुश्किल 150 किलोमीटर दूर वो समुद्री यात्रा से आ रहे थे. जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई and he died in a shipwreck. So he lost his father when he was 35 years of age, but he lost his mother at quite an early stage in life. और इस माँ का न होना उनके कविता में एक संवेदना के रूप में झलकती. In 1798, when Wordsworth was around 28 years of age, तो कोलरिज के साथ उन्होंने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया. लिरिकल बैलेट्स in collaboration with Coleridge. यूं तो कॉलरिज उनसे 2 साल छोटे थे. He was born in 1770 and Coleridge was born in 1772. लेकिन वॉर्ड्सवर्थ जीवन पर्यंत कॉलरिज का बड़ा सम्मान करते थे. यहाँ तक कि उन्होंने जब अपना बृहद काव्य संग्रह या काव्यात्मक ग्रंथ द प्रेल्यूड लिखा, so he gave it the title Poems to Coleridge. So it was in literary collaboration with Coleridge that the lyrical ballads was published in 1798. इस lyrical ballads का जो हाई पॉइंट था वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कि कोलरिज ने लिखा था, वो इसका हाई पॉइंट था. अनडिसाइडेडली इट वाज द लीड मोटिव ऑफ द लिरिकल बैलेट्स. लेकिन वर्ड्सवर्थ के भी कुछ पोएम्स इसमें थे और इंस्टेंट ख्याति मिली. द लिरिकल बैलेट्स, it was the harbinger of the Romantic Revolution. Friends, एक साल बाद, ज़्यादा 2 साल बाद, फिर 1800 में उन्होंने सेकेंड एडिशन निकाला. पहला एडिशन तो डिसाइडेडली द एडवांटेज ले विथ कोलरिज. उसका राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक प्रकार से कह लीजिए कि वाटरशेड था लिरिकल बैलेट्स का. इन 1800 Coleridge and Wordsworth came up with the second edition of the lyrical ballads, जो कि टाइटल था लिरिकल बैलेट्स एंड अदर पोएम्स.
है। और इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। फर्स्ट, she dwelt among untrodden vales. She dwelt among untrodden ways. Second, 3 years she grew. Lucy Gray points. Third, the ruined cottage. And fourth, nothing. So friends, all these 4 points symbolize the coming of age of William Wordsworth. She dwelt among untrodden ways. इस कविता में विलियम वॉर्ड्सवर्थ untrodden ways. इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ बेसिकली that idyllic, pastoral, rustic life of the countryside, far from the madding crowds, जहाँ दुनिया के हसल बसल मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर, placid, calm life where time seems to stop, इसकी कविता है। कविता की मुख्य नायिका तो लूसी है, ठीक है, लेकिन लूसी की तरह एंड वायलेट, ठीक है, they have got their own pristine pastoral and bucolic beauty. Own pristine, pastoral and bucolic beauty. क्लियर? वो कहता है a violet by a mossy stone half hidden from the eye, fair as a star where only one was shining in the sky. ये वॉयलेट का एक फूल एक प्रकार से मॉसी स्टोन के नीचे कई जमे पत्थर के पीछे है, फूला हुआ है और आधा छिपा हुआ है, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, लेकिन ये कितना सुंदर है, where as a star where only one was shining in the sky. So friends, this is the high noon of romantic imagination. इसकी अगली poem, oh, it's full of pathos. Lucy Gray.
3 years she grew. It is full of pathos. बेसिकली इसका जो सेंट्रल आइडिया है, द पेथोस एंड सैडनेस ऑफ डेथ. देखिए ये कविता बेसिकली जब अपने अलग हो जाते हैं और किसी भी शिशु का बाल अवस्था में ही मृत्यु हो जाना, जबकि वो अंगड़ाई ले रही है या ले रहा है पूरे जीवन को देखने के लिए, ये कितना हृदय विदारक है. हाउ पेनफुल, हार्ट रेंडिंग इट इज. ये कहानी, ये कविता वर्ड्सवर्थ को उसकी सिस्टर डॉरोथी ने एक कहानी सुनाई थी, जो कि यॉर्कशायर इंग्लैंड में हैलिफैक्स में रहती थी. याद रखिएगा कनाडा में भी एक हैलिफैक्स शहर है, लेकिन ये एक गांव की बात मैं कर रहा हूं, हैलिफैक्स, जो कि यॉर्कशायर इंग्लैंड में है. तो वो रहती थी और उसने एक दिन वो बर्फीले तूफान में फंस गई और इसके बाद वो she was submerged in that storm. बगल में नहर था, उसी में डूब गई. वो भटक गई, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था. बर्फीला ब्लिजर्ड आप समझते ही हैं कितना भयावह होता है. तो बड़े छोटे अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई. इस वृतांत ने वर्ड्सवर्थ के ऊपर बड़ा गहरा छाप छोड़ा. उन्होंने ये कविता लिख डाली. 3 years she grew in sun and shower. 3 years she grew in sun and shower. Then nature spoke another flower in world was never seen. 3 साल वो धूप, गर्मी, तपिश में बड़ी हुई और तब प्रकृति ने कहा कि इतना सुंदर, इतनी सुंदर बालिका, सो इनोसेंट अ चाइल्ड, विश्व में नहीं है. एंड लूसी बिकेम अ चाइल्ड ऑफ नेचर. प्रकृति की शिशु हो गई. आगे वर्ड्सवर्थ लिखता है, दिस गर्ल आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई शैल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन. इसको मैं अपनाऊंगा, इसको तराशूंगा. प्रकृति के हाथ, कैरसिंग, केयरिंग से वो बड़ी होगी और एक सुंदर नौयौना के रूप में बड़ी होगी. शी विल बी अ ब्यूटिफुल लेडी. ये तो लूसी वॉज अ चाइल्ड ऑफ नेचर. नेचर शावर्ड हर बाउंटीज ऑन लूसी. लेकिन ऐसा होना नहीं था. और अंत में वो कहता है, then nature spoke. Then nature spoke, the work was done. How soon my Lucy's race was run. कितना जल्दी मेरे लूसी का दौर खत्म हो गया. She died. तो देखिए, the entire poem, it reverberates with the pathos, the sadness, the haunting loneliness of death. बहुत ही मार्मिक कविता है. Then we come to the ruined cottage.
The chief protagonist of this poem is Margaret. बेसिकली ये कविता दो चीज कहती है। पहली चीज कि जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ लाइफ अल्पकालिक है, और हर भौतिक वस्तु क्षय और मृत्यु का विषय है। Death is an inevitability which is bound to occur. You cannot wish away death. तो जीवन क्षणभंगुर है, जीवन अल्पकालिक है, नश्वर है ना? लाइफ इज शॉर्ट, टेम्पररी, ephemeral, and death is inevitable. और इसके साथ ही इस छोटे से जीवन में, इस क्षणभंगुर नश्वर जीवन में जो है प्रकृति ही वो मरहम लगाती है, प्रकृति ही वो आनंद देती है। तो ही कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट द सूदिंग caressing balm of nature with the destructive and destabilizing aspects of industrialization. ये बड़ा एक प्रकार से कह लीजिए कि आइडियोलॉजिकल पॉइम है। He compares and contrasts and caring balm of nature with and destructive aspects of industrialization. तो वो कंपेयर और कंट्रास्ट करता है, ठीक है ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर दिया है हमारे लोगों के साथ, कितना हाय तौबा मचा दिया। नाउ इस कलेक्शन में जो अंतिम पोएम है वर्ड्सवर्थ का नटिंग, नटिंग इज अबाउट अ बॉय It is about a boy who goes to the forest to pick up nuts. वहाँ उस शांत रम्य एकांत वातावरण में he comes across a grove, grove समझ रहे हैं ना, a cluster of trees, और उसके नीचे वो that वर्ड्सवर्थ बड़ा बढ़िया फ्रेज यूज करता है,
द बैंकेट ऑफ साइलेंस, जैसे लगता है कि कितना उसको शांति मिलती है, फार फ्रॉम मैडनिंग क्राउड्स, इन द सूदिंग लैप ऑफ नेचर, है ना। तो फिर वही एक छोटे से शिशु की ये कहानी है जो जंगल में नट्स चुनने जाता है ना। इन 1807 Wordsworth came up with his most celebrated poetic collection. I would not call it the most celebrated, but of course a very important, क्योंकि most celebrated poetry तो उनकी the prelude मानी जाती है ना। तो in 1807 he came up with his collection of poetry, poems in 2 volumes. इस poems in 2 volumes में some of the very acclaimed poems of Wordsworth featured. सबसे पहले My Heart Leaps Up, The Rainbow. Then we have I Wandered Lonely as a Cloud. Daffodils. Then the third important poem, The Solitary Reaper. Fourth, Ode. Ode to Duty. Fifth, Ode. Intimations of Immortality. Sixth, London. Seventh, Westminster Bridge. And eighth, The World is Too Much with Us. With us. ये 8 पॉइंट्स इस कलेक्शन में वॉर्ड्सवर्थ के थे। अब सबसे पहले द रेनबो, इट इज अ स्मॉल पोएम बट इट embodies the entire philosophy of William Wordsworth. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. The rainbow is a part of nature, right? And when he sees the rainbow, his heart leaps up with happiness. He is overflowing with joy, deluged with joy, happiness.
कहने का मतलब है कि द रेनबो को देख के उसको आनंद आता है और रेनबो प्रकृति का एक अंग है। तो जाहिरी तौर पे पहला मैसेज जो कन्वे करता है इस पोएम में कि नेचर इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। फर्स्ट, नेचर इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सो इट वाज व्हेन माय लाइफ बिगैन, सो नाउ इट इज व्हेन आई एम अ मैन, सो बी इट सो व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। वो ऐसा ही था जैसा मैंने जन्म लिया तब था, ऐसा ही है जब आज मैं जवान हूँ, और ऐसा ही रहेगा जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, और वैसा ही रहेगा जब मैं मर जाऊंगा। तो रोजे कयामत से रोजे कयामत तक ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर इज इमॉर्टल। प्रकृति अमर है, अनंत है, अंतहीन है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, तो ऐसे ही रहेगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, तो सेकंड चीज जो ये पोएम कहती है कि नेचर इज इमॉर्टल। पहली चीज कि नेचर इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। दूसरी चीज, नेचर इज इमॉर्टल, इटर्नल। तीसरी चीज, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि द चाइल्ड इज क्लोजर टू नेचर। शिशु प्रकृति के नजदीक है, और प्रकृति ही ज्ञान स्रोत है। तो मर्द जो है वो प्रकृति से दूर है, उसको ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा है। शिशु प्रकृति के पास है, उसका ज्ञान वर्धन हो रहा है। तो ज्ञान के मामले में तो शिशु मर्द का बाप हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा मैसेज जो ये पोएम पुट अप करता है वो ये है कि नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। थर्ड मैसेज, पहला, नेचर इज द सोर्स ऑफ जॉय। दूसरा, नेचर इज इटर्नल एंड इमॉर्टल। तीसरा, नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। और चौथा, एंड आई शैल विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल फाइटिंग। मैं चाहूंगा कि मेरे दिन पूरी तरह प्रकृति के इस संसर्ग में बीते, प्रकृति के गोद में बीते। तो ये कहते हैं, आई शैल विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल फाइटिंग। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ही सेवक, पालक और ईश्वर। तो पैंथिज्म इन नेचर, ये चौथा संदेश आपका इसका है द रेनबो का। छोटा सा पोएम देखिए, कितना बड़ा फलसफा, कितना बड़ा दर्शन कह जाता है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पोएम, दैट इज डैफोडिल्स और I wandered lonely as a cloud। इस कविता में वर्ड्सवर्थ जो है, ये वो आनंद जो कि प्रकृति उसको देती है उसका वर्णन करता है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over hills and vales, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. कितना खुश, सुरम्य वातावरण है। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance.
तो जैसे तारे होते हैं, चमकते रहते हैं मिल्की वे में, वैसे ही सुंदर अलौकिक तरीके से वो खाड़ी के, वो तालाब के घेर के पूरा वैसे ही चमक रहे थे। ठीक है। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. कितना खुश, tossing their heads in a sprightly dance. The waves beside them danced, but they, तरंगे भी नाच रही थी, तालाब की, सरिता की, जलाशय की। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. उन्होंने तो अपने नाच से इन तरंगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। A poet could not but be gay in such a jocund company. jocund मतलब हैप्पी। तो कोई भी कवि इस समूह में खुशी तो हो सकता है। A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. मैं देखता रहा और शायद ही सोचा कि ये देख के हमको क्या फायदा हुआ, क्या प्राप्ति हुआ। और प्राप्ति क्या हुआ ये सुनिए। जब मैं कभी दुखी होता हूँ, संतप्त होता हूँ, चिंतित होता हूँ, तो वही नजरिया मुझे याद आता है। Tossing their heads in sprightly dance, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. तो इस दृश्य का मुझे क्या लाभ हुआ वो ये देखिए कि for often on my couch I lie in vacant or in pensive mood. They flashed upon the inward eye, which is the bliss of solitude. कभी कभी मैं जब दुखी संतप्त अपने बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, तो वो हमारे मानसिक पटल पे आ जाते हैं, मेरे आंतरिक आंख के सामने आ जाते हैं। और तब उस दृश्य को याद करके मेरा मन खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। राइट? Then we come to the third point, and it is very, very important, the solitary reaper. Again, very, very philosophical lines. एक छोटी सी लड़की, ग्रामीण मजदूर लड़की, अनाज काट रही है, कुछ गाना गा रही है, और ये गाना, सोचिए, कवि एक साधारण, वर्ड्सवर्थ एक साधारण ग्रामीण मजदूर लड़की को वो एक रोमांटिक हालो देता है जो कि इंपॉर्टेंट है। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing to herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. पूरी वादी, पूरी घाटी उसके सुरीले संगीत से गूंज रही है। इतना मधुर, इतना मीठा कि no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides.
तो दूर दराज प्राकृतिक सौम्यता सुंदरता में भी ककू की आवाज या नाइटिंगेल की आवाज इस लड़की के आवाज के मधुरता को, जस्ट सी द फ्लाइट ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन, बराबरी नहीं कर सकता। फिर कहता है कि क्या गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लोज of old forgotten far off things and battles long ago. वो क्या गा रही है? Perhaps the plaintive number flows, कुछ भूले बिसरे लम्हों को याद करके गा रही है, या कोई युद्ध के बारे में गा रही है, और is it for some happy lay, familiar matter of today, रोजमर्रा की जिंदगी की चीज के बारे में गा रही है, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. Whatever the tune, the maiden sings as if her song could have no ending. I saw her at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still. मैं सुनता रहा, शांत, निर्द्वंद, निर्लिप्त सुनता रहा। I listened, भाव विभोर मैं सुनता रहा। I listened motionless and still, and as I mounted down the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. उस संगीत को तो अपने दिल में मैं बरसों बाद तक संजोए रखा। उसके सुनने के बाद तो ये देखिए, सॉलिटरी रीपर, एक साधारण सी कविता, एक साधारण सी ग्रामीण मजदूर बेटी, बच्ची काम कर रही है, गाना गा रही है, और उसी में द फ्लाइट ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन देखिए वर्ड्सवर्थ का। देन ओड टू ड्यूटी, इस कविता में वर्ड्सवर्थ कहता है कि अब तक तो हमने जीवन को एक कैवेलियर तरीके से गुजारा, कभी भी जीवन की गंभीरता नहीं समझा, कर्तव्य बोध का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब प्रकृति की अनुप्रेरणा से I have been envisioned to lead a purposeful life, to lead a life which is contributive, positive to society. So, Ode to Duty is a poem, which reinforces the inspiration of nature in the poet so that he may lead a dutiful life. He may be reminded of his obligation to man and society. Then the next poem, Ode on Immortality. ये poem भी देखिए, the soothing balm of nature, कैसे वो व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति के संवेदनाओं को अमरत्व प्रदान करता है। इस पर लंदन, इन दिस पोएम लंदन, वो वही बात करता है कि किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, द न्यू एज, इंक्रीजिंग मॉडर्नाइजेशन, इसने कैसे कैसे लंदन की सामाजिकता को खत्म कर दिया है, लंदन के नेचुरल एम्बियंस को खत्म कर दिया है। एंड हाउ इज लंदन सफरिंग फ्रॉम अ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, हाउ इज लंदन सफरिंग फ्रॉम अ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, ये इस पॉइंट में उजागर करता है।
देन वेस्टमिंस्टर ब्रिज 1826 में बना था। वहां वो खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है भाई, प्रगति तो हो रहा है, औद्योगिक प्रगति भी हो रहा है, लेकिन किस मूल्य पर हो रहा है? न्यू लैंडमार्क्स, जायंटिक स्ट्रक्चर्स, द फ्लैशनेस ऑफ लाइफ, द hype and hoopla of the modern society is coming at a cost. It is coming with a devastation of nature. And then last poem, the world is too much with us. He wants to be left in isolation. He wants to be left in a harmonious existence with nature. He wants to experience the silence, the ambience, the idyllic, bucolic aspects of natural life. So leave him alone, far from the maddening crowds. ठीक है, तो ये 8 पोएम जिनको संक्षिप्तता से आपको जानना है, this featured in poems in 2 volumes. After 1810, the poetry of Wordsworth became more philosophical, ideological, and it gained greater profundity. अब इसके बाद से वो पीरियड देखिए, 1843 में ऑन द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी, वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बना, एंड ही कंटिन्यूड एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड टिल 1850, दैट वाज द ईयर ऑफ हिज डेथ. तो 1810 और 1850 के बीच उसने बड़ा फिलोसॉफिकल पोएट्री रचा है. 1810 में ही उसने द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा, वो भी एक इम्पोर्टेंट पोएम था. देन he wrote To the Cuckoo, one of the few pastoral lyrical poems which Wordsworth wrote in his latter phase. फिर द ecclesiastical sonnets, ये धर्म वगैरह पे, ईश्वर वगैरह पे उसने लिखा था. But his magnum opus, his piece de resistance was the Prelude. इसी बात से अंदाज लगा लीजिए कि प्रेल्यूड जो वर्ड्सवर्थ लिख के मरा जितना, वो 26,700 लाइन वो लिख के मरा था. और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट 10,350 लाइन थी. तो जितना लिख के मरा वही मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के लगभग 3.25 गुना 2.5 गुना बड़ी थी. और कहा जाता है कि अगर उसने प्रेल्यूड कंप्लीट कर लिया होता तो इट वुड हैव रन इन अराउंड 33,000 lines, almost 3 times the length of, rather more than 3 times the length of the Paradise Lost of John Milton. तो लास्ट फेज जो वर्ड्सवर्थ का था, जो कि बहुत ज्यादा प्रोफाउंड था, मेटाफिजिकल एंड फिलोसॉफिकल था, इट नीड्स अ फेयर डिग्री ऑफ स्क्रूटनी. हाँ, इसको अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे. विद दिस आई थैंक यू फॉर द क्लास. हैव अ नाइस टाइम. गुड डे. थैंक यू. डू वेल.